बगल में सोटा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा। चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, हाँ चारों दिशा जगीरी में। लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरो यार फकीरी में। आखिरे तन हाथ मिलेगा, आखिरे तन हाथ मिलेगा। आखिरे तन हाथ मिलेगा, आखिरे तन हाथ मिलेगा। काफिरत मगरूरी में, काफिरत मगरूरी में, काफिरत मगरूरी में, हाँ काफिरत मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो रे संतों, कहत कबीर सुनो रे संतों। कहत कबीर सुनो रे संतों, कहत कबीर सुनो कहत कबीर सुनो रे संतों, कहत कबीर सुनो रे संतों।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪੜਿਓ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਰ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਪਿਆ ਸੋਈ ਨਿਬਰਿਓ ਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ। ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਬਰਿਓ ਸਾਰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਨ ਵਡਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਪਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਬੀਰ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਅਨਹਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਦਿਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 6/17 ਹਰੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੌਂਡ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ, ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਧੰਨ ਕਬੀਰ, ਜੈ ਕਬੀਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਧਸੰਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ की, संगत साधु महात्मा की करिए, संगत करिए साथ की, बंदियों करे खुदा, खुदा की मात ढूंढे। कबीर साहब की बानी है। संगत करिए साथ की, बंदियों करे खुदा। लोहा टेंशन होता है, देखो पार चला, देखो पार चला, मत कर मानो हासा, मत हासा मानो, मत कर मानो हासा,
सब बन चंदन हो रहा, जहाँ चंदन का वासा। जैसे ये सत्संग है, इकट्ठी हुई, दूरों दूरों चल के आए हैं, ऐसे ही हो चंदन का बिरबा भला। जैसे कबीर साहब जी शोभा चल रहा है, जैसे शोभा हो रही है, ऐसे कबीर चंदन का बिरबा भला। एक बूटा होता चंदन का, पर बासरा सुगंधिया जो है सारी बनास्पत के विचों चंदन की वासना होती है। जैसे कबीर चंदन का बिरबा भला, बेड़ो ढक पलास, वो भी चंदन हो रहा जो बसे चंदन के पास। जो सत्संग करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा असर तो होता है। क्यों? कबीर महाराज जी कहते हैं, कबीर संगत करिए साथ की बंदित करे खुदा, लोहा कैंचन होता है देखो पार चला, देखो पार चला मत कर मानो हासा, सब बन चंदन हो रहा जान चंदन का वासा। कबीर चंदन का बिरबा भला, बेड़ो ढक पलास, वो भी चंदन हो रहे जो बसे चंदन के पास। जो है चंदन के पास बसता है ना, वो भी चंदन जैसा ही हो जाता है। तो अब्बल अल्लाह अनूर पाया, अब्बल अल्लाह ने ऐसा नूर पाया था सब दे विच, सबना दे विच वही बस गया है। अब्बल अल्लाह ने नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते ही सब जा ऊर्जा, कौन भले ते कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे, और लोगों पर ना भूलो भाई। खालक में खल्क, खल्क में ही खालक, पूर्ण जो सर्व खाही, माटी एक नेक बांध कर साथी। जैसे माटी कोई है, अनेका बांध कर कांडे कुम्हार बना देता है। इस तरह दस्या गोल्क में हाथ को बनो कड़ कड़ कटे घोट, अंदर की रस्या करे बाहर लगावे चोट। रजब पहला थोड़ा खा के मगरों काटे रोक, कहता कि कोई ना माटी, माटी एक नेक बांध कर साथी, साथी साधन हारे, और ना कोई दोष माटी के भांडे, ना कोई दोष तुम्हारे, सब में सच्चाई को सोई। सारे ने विचों कबीर महाराज जी वस रहा है, सारे ने विचों ही वस रहा है। सब में सच्चाई को सोई, हुक्म पछाने ते बंदा कहिए सोई। अल्लाह चाइना लिखिया गुड़ गुड़ पीना मीठा, और कहे कबीर मेरी सहसा नासी, कर्म नहीं इतना टीका तो सारे वही है। कौगट गुरुद कौगट वट प्रगट, सब गट वस्तु भरी ने साधो हिरदे विच हरी ने, सारे दे हिरदे विच वही परमात्मा वस रहा है ना। जैसे कबीर साहब जी कहते कक्का केवल नाम है, बाबा ब्रह्म शरीर, रारा सामने रंग रो ताको नाम कबीर। कबीर कबीर का कहो तो सबर शरीर, बांधो इतनी आखिरकार राखो तो ही सह कबीर। और भाई अब तू ही है, सारे तुम्हें वाचना है, तो करते तो प्यो। वीर साहब जी कहते तो करते तो प्यो, मुझ में रही ना हो, और आपा पाए मेरे जहाँ देखा तो ही तू जिधर देखा तू ही तू है। भूले बना मन मोया दिखाया, ये मन मुझ जाता रहता है। भूले बना मन मोया दिखाया, संग स्वामी शांत नहीं है, संग है पास ही है, मैं जानता नहीं। संग स्वामी जानत नहीं, बन खोजन को आया, और मारी सोच निकल आई हुई, हाथ कसुनी आया भगवंत बिना। कहे कबीर भगवंत बिना और वीरता जन्म आया, आया तो सही मानस जन्म नहीं। कबीर साहब जी कहते ना, कबीर मानस जन्म तो लब है, वो उतनी बारंबार, और जो बन पत्ते पूंज गिरे
ਬੌਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਡਾਲ ਜਾਸੇ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖੋ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਤ ਕਰ ਸਭੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੀਪ ਕਾ ਪਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਜ ਕਰ, ਨਿਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਜ ਕਰ। तो निज तो दिन रात तो मिलती नहीं है, कई स्वभाव नाल मिलती है। नागे आए ते नागे जाना, जैसे ही आए हैं नागे ही आए तो नागे ही चले जाना है। नागे आए तो नागे जाना, ना कोई रसी राजा राणा, आप सामना दास हाथी, क्या प्यो दल बांधे हाथी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नागी, इस रावण का दिया ना बाती। और कहे कबीर पशु गुण विचारो, गुण मेरा है नाम जपो। नाम जपना जैसे 24,000 साढ़े श्वास जड़ा है 24,000 दिन रात का रूम रूम में श्वास है। ਇਹ ਰੂਮਾਂ ਰਾਏ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਰੂਮਾਂ ਰਾਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। 24,000 ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਨਦਾਰੇ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ ਸੋਵਨਦਾਰਾ ਰੋ। ਆਇਆ ਆਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਇਆ ਆਵੇ ਗਿਆਨੀ ਆ, गुर प्रसाद लिया न्यूदा, गंगा गोविंद गुण लिया, श्वास श्वास मीत। और क्या प्रवासा दही का बिगड़ ना लागे थी, तेरा प्रवासा की आएगा। क्या प्रवासा दही का बिगड़ ना लागे चीत, हृदय हार हार हो गई। हृदय में क्यों नहीं बसता परमात्मा, सारा देख दिल चोई कबीर साहब की वास नहीं। हृदय हार हार हो गई, मुंह की हाथ ना 8 पैर को लाग रे संगत के मनवा। और कबीर स्वास्थों की कर सिमरनी, जापों के कर धाम। कबीर साहब जी कहते स्वास्थों की सिमरनी कर। कबीर कमाई अपनी कबूना में थी जा, और 7 समुद्र रोड ये बोट मिलेगी का। कहता है 7 समुद्रा की रोड लागे ना तो फिर भी मिलेगी, पर कीजिए हुए सही। ये कमाई की नहीं है तो मिलेगा। कबीर जगत मजदूरी देता है, क्यों आपसे भगवान कहना जागते में किसी की दिहाड़ी लाई मजदूरी करिए तो देता है, लै लेंगे। तो जो वो घर की होए तो भी मिलती है। कबीर श्वासों की कर सिमरनी, जापों के कर जाप। ब्रह्म का ध्यान कर सोहम आपे आप, सोहम सतनाम सारा, नानक गुरमुख नाम उधारा। खावत पीवत उठत बैठत, खांदे भी पींदे भी उठते भी बहते भी तू नाम जप पाई। खावत पीवत उठत बैठ सोत नाम, नान टिके सतनाम। कबीर स्वास्थ्यों की का सिमरनी, जापों के कर जाप। ब्रह्म का था ध्यान कर सोहम का प्या, सोहम सतनाम सारा, नानक नाम उधारा। ये आधार मिलिया है, जो गुरु को आधार मिलिया है, आधार करके ही आए थे। कि मालक तेरा ही नाम जपांगे, श्वास श्वास तेरा ही नाम जपांगे। जैसे 9 महीने माना ने घर में लेता है, 9 महीने रो गर्भ में गर्भ जोड़ बख्शाई ने, वो हाथ जोड़ से बाहर जाया, भूल गई मान की चतराई ने, भजो मना राम जो भजया ना जाई ने। आया है तू नाम जपने को एक ही कार कमाई ने। इतने आन के तो जगत भी आते पाया जाता है। जो जन्म लेता तो रोंदा करलाता, क्यों रोंदा है? क्यों जरा पिछला श्वास श्वास ओनू मालक नाल वादा किया है,
भाई मैं तेरा ही नाम जपांगा, मैनू इस नरक कुंड दे विचों कढ। मैं तेरा ही नाम जपांगा, मैनू इस नरक कुंड दे विचों कढ। मैं तेरा ही नाम जपांगा। कहना 9 महीने रो करके गर्भजोड़ बख्शाई रे, हाथ तोड़ के बाहर जाया भुलकी मन की चतराई रे। भजो मना राम इथों भजया ना जाई रे, आया हट नाम जपने में एक ही कार कमाई रे। बाल को इतना खेत गवाई, बाल को इतना खेत के गवा देता है। फिर जवानी आई, बाल को इतना खेत के गवाती, फिर जवानी आई रे। और मार पिता की करे निंदिया, ये दरिया की करे वड्याई है। कहता जो ये है यही है और कुछ नहीं है। मार पिता की करे निंदिया, दरिया की करे वड्याई रे। आया तो नाम जपने को एक ही कार कमाई रे। आया का नाम जपने वास्ते हैं एक ही कार कमाई रे। बिरद प्यो कफा पाई ने घेरा, बिरद हो जाता तो कफा पाई घेर लेती है। भाई जोवन दे विच जो भी है, जोवन ही ने रतन सी, गाख सी सब को, और जोवन रतन ब्याह गई तेरे ही बड़ा करो। कहते जो जोवन लग जाता है तो फिर कोई पता नहीं है, चलिया नहीं जाता, फिरिया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तुरिया नहीं जाता। कोई उद्यम करके मालिक का नाम जपना होवे बैठा जाता। बड़ा औखा है, कभी गोडे पीड़, कभी लक दर्द, कभी कोई दुख। कहता बिरद प्यो कफा भाई ने घेरा, सुध बुध रही ना काई रे। और पुत्र पोतरे हो उठ बोले, ए पढ़वा मरदा भी नाई रे। आया तो नाम जपने को एक ही कार कमाई रे। आया तो नाम जपने को है एक ही कार कमाई रे। ये जान के तो कहता बिरद प्यो कहा भाई ने घेरा, सुध बुध रही ना काई रे। पुत्र पोतरे हो उठ बोले, पढ़वा मरदा भी नाई रे। आया तो नाम जपने को एक ही कार कमाई रे। जे जाना मेरे संग नहीं निभनी, मैं माड़िया माया धन दौलत जितना भी है, जे कहे मेरे नाल जाना तो नाल नहीं जाना, ये इत्थे ही रह जाता है। जे जाना मेरे संग नहीं निभनी, सगली ध्यान लटाई दे। कैद कबीर सुनो भाई साधो, तो होता है लोग विसाई दे। मौलत गाड़ी उससे मालिक में सहाय होना है। जे नाम जपेगा तो ताई सहाय होना। जे भाई नाम नहीं जपांगे तो कुछ नहीं मिलना। नाम जपन को जीवा दीनी, नाम जपन वास्ते आंदी जीवा दी है मालिक ने। नाम जपन को जीवा दीनी, हर दर्शन को की, एक एक श्वास मेरा अनमोल है बंदे, पर हाथ ना आवे लखी। प्यारी साथ संगत जी, वो कमेटी वाला का अशारा है कि थोड़ा चिर शासन करनी, क्यों कि थोड़ा थोड़ा टाइम सारे सत्संग करता जाए। हो ही संत आए ने, आज मोरे अपना साधु जान आए थे, आज मोरे गृह में गुरु जान आए थे, आज मोरे गृह में साधु जान आए थे। आए रे मेरे मन पाए रे, आए रे मेरे मन पाए रे, आज मोरी अंगना साधु जान आए रे। शासन पूरी होती है। ऐसे ही आज मोरे गया में गुरु जान आए रे, आए रे मेरे मन पाए रे। ब्याज लीता, ब्याज लीता, ये इतकार डालियो। इन्होंने बड़े सोने गलीचे वसाए ने, कमेटी वाले ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। तो ब्याज लीता, ये इतकार डालियो। आदर कार बठलाए रे, आदर कार अवधमान ब्याज जाओगी करने ने कर्म आएगा अवधमान। ब्याज लीता एक कार डालियो, अमृत कार बठलाए रे, आदर कार बठलाए रे। हाथकर मंडल, हाथकर मंडल गाल जप माला, गाके तिलक चढ़ाए रे, आज मोरे अंगना गुरु जन आए रे। आए रे मेरे मन पाए रे, आज मोरे गृह में साधु जन आए रे।
हाथ कर मंडल गल जप माला गाथे तिलक चढ़ाए ने दसे दिखरे नाम साधु कर्म साधु संतान दे ज्ञानी साधु मोह वो त्यागी साधु दुर्लभ ने कहना ज्ञानी साधु जिहड़ा हो जाता है ये त्यागी साधु जिहड़ा दुर्लभ है ना। जैसे हाथ कर मंडल गल जप माला द्वार से तिलक चढ़ाए ने आज मोरे अंगना गुरु जान आए रे आज मोरे गया में साहब जान आए रे। कैद कबीर सुनो भाई साहब ते विछड़े हंस बुलाए ने परुणित ही से बड़ी शोभा यात्रा ते बड़ा सत्संग दे विच आनंद माणिया। तो इस साल भी इन्होंने बेटी वाले ने बड़ा अच्छा जो कर्म किया है सत्संग में बुलाया है दूरों दूरों साधु महात्मा भी आए हैं। तो सबना ने संगत का लाभ है आए आओ बैठो पियो पानी तीनों गल्लां बोलनी आनियां कोई बोलनी आती तो एक घड़ी और आदि से बनिया सत्संग से तीन गोष्ठी दो किना सो लाभ जिन्नी करनी है भाई उन्ना ही लाभ है। तो कमेटी वाले का सारा है सत्संग इन्ना चरी बड़ी है जिन्ना चर वचन मेरे कीते ने बाणी जी वो बड़ी है अनेक है कबीर साहब जी के श्लोक अनेक ने बाणी भी बड़ी है बाणी का कोई कमी नहीं है। तो माल को ज्ञान कोई पठानकोट की शोभा यात्रा में भी कह बैठे हाँ बजानू टाइम देना है तो खुला टाइम दिया करो घंटा चाहे 2 घंटे। तो ऐसे करके गुरु महाराज की महिमा गानी है गुरु महाराज का नाम लेना है। तो आओ प्यारी साध संगत जी आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर एक चार सिंहासन चले चले एक बांधे जाए जमीर जाना सब ने आ भाई आए दे तो जाना भी कहना जैसे है लगिया पूरा का मेला अज लगे पुराना मेला जी अज लगे पुराना मेला जी बाग लवनिया बगीचा लवनिया बाग लवनिया बगीचा लवनिया विच लवनिया चेला जी अज लगे पुराना मेला जी। वाह जी वाह भाई एक डाली पाल दो लग दे एक डाली पाल दो लग दे एक गुरु एक चेला जी आज लगे पुराना मेला जी आज लगे पुराना मेला जी। अपनी करनी सतगुर करना अपनी करनी सतगुर करना अपनी करनी चेला जी अज लगे पुराना मेला जी अज लगे पुराना मेला जी। ओ कैद कबीर सुनो भाई सालो कैद कबीर सुनो भाई सालो मोट गुरु जग चेला जी अज लगे पुराना मेला जी। अज लगे पुराना मेला जी
ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜੈ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਬੀਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੈ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ तो अं होर भी बानी करते पर संगत में चला लिया मगर बड़ा सोहना अच्छा बोल रहे हैं मगर तो जिबा पवित्र होंगी है कहते भी पवित्र होंगे सुनते पवित्र होंगे कहते भी पवित्र सुनते पवित्र आओ जिसने वाली कहनी है तो आन के कबीर महाराज की बानी विचार कर सकता है तो संत महात्मा भी आए ने वो भी आन के अपना प्रचार सुनान के कानून सब बानी सुनान के बड़े प्यार नाल सत्संग सुनो एक घड़ी और आधी घड़ी आदि से बुनियाद संतन सिद्धि गोष्ठी जो की मैं सो लाभ धन कबीर धन कबीर जय कबीर जय कबीर धन कबीर साडे बाबा तरलोकदास जी जिन्हां दे मुखार विच तुसीं शब्द सुने सो इन्हां दा सतगुरु कबीर साहिब जी पंथ सेवा सोसाइटी पहुंचण ते धन्नवाद करती है साडे विच आईयां होईयां दूरों दूरों संगतां सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी उन्हां दा पहुंचण ते धन्नवाद करती है बाहर जो संगतां ने चाह पानी दा कर लिया अपना प्रोग्राम अंदर आ जाए और प्रोग्राम की रंगत नूं वधाण ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਪੱਚੋਵਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਧਨ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ मनोज कुमार जी अपने साथियों ਨਾਲ पहुंचे हैं उन्होंने पहुंचने ते कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद करती है जी फज्जूपुर तो पाठी स्वर्गीय श्री संसार चंद जी की याद दे विच उन्होंने समर्पित जो पाठी साहिबान हैं जो कमेटी है उन्होंने ऋणी है उन्होंने जो पंथ दियां प्रति जो सेवा निभाइयां उन्होंने भूल नहीं सकदियां उन्होंने परिवार के वालों भी जो उन्होंने सपुत्र श्री हरमीतपाल जी जो कि HPKP नाम तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं जो लाइव चल रहा है उन्होंने चैनल तो ही चल रहा है सतगुरु कबीर साहिब पंथ सेवा सोसाइटी उन्होंने भी धन्यवाद करती है फज्जूपुर तो मास्टर अश्विनी कुमार जी श्री तरलोक चंद जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਤੋਂ शिव कमल शंडा जी शशि भगत जी संजीव कुमार जी अपने साथियों नाल पहुंचे हैं कमेटी उन्हों का पहुंचने ते धन्यवाद करती है गड़े तो सुधाकर मान जी पहुंचे हैं उन्हों का भी कमेटी पहुंचने ते धन्यवाद करती है सतगुरु कबीर साहिब जी मेहर भरिया हाथ रखन शक्ति का बल बख्शन जी सतगुरु कबीर साहिब पंथ सेवा सोसाइटी ने जो लड़ीवार दूसरा सत्संग समागम का आयोजन किया है इस विच
उचेचे तौर तो बिहार तो संत अबे साहिब जी पहुंचे हैं, वो ਤੁਹਾਡੇ दरमियान कुछ ही पलों से पहुंच रहे हैं। पंजाब के महंत श्री जगदीश साहिब जी उन्होंने रहनुमाई हेठ यह प्रोग्राम हो रहा है। सो संगत जी 5-10 मिनट में ही वो पहुंच जाएंगे। सो उन्होंने मुखार विचों भी जो अमृत वर्षा होएगी उसका आनंद मानांगे। सो सतगुरु कबीर साहिब पंथ सेवा सोसाइटी सारी संगत की ऋणी है जो इस प्रोग्राम के विच आई है। ये जो प्रोग्राम सतगुरु कबीर साहिब नाम लेवा संगत के नाम को समर्पित है। तन कबीर, तन कबीर, तन कबीर, तन कबीर, कबीर। सतगुरु कबीर साहिब पंथ सेवा सोसाइटी बहुत बहुत ऋणी है। संत साहिबान साडे विच पहुंच चुके हैं। तन कबीर, तन कबीर, तन कबीर, तन कबीर, तन कबीर। संगत जी संत मिलन को जाइए तजमाया विमान, ज्यों ज्यों पग आगे दर कोटिन यज्ञ समान। मैं सुदेश कुमार जी को बेनती करना कि समा इजाजत नहीं दे रहा। हेलो, एक ने कही दूजे ने मानी, तो नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कबीरा संगत साध की साहब आवे यार, लेखे में सो गली तो बाकी दिन बर्बाद। अगर आज्ञा हो तो एक मुखरा कह रही है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो क्योंकि जिन्ना का समा कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीरा खड़ा बाजार में कि सबकी मांगे खैर। ना कहूँ से दोस्ती कि ना कहूँ से वैर। कबीर साहब दाद में अज आया, कबीर साहब दाद में अज आया। अरे बोलो कबीर साहब दाद में अज आया, कबीर साहब दाद में अज आया। भगता ने रल मिल के मनाया, भगता ने रल मिल के मनाया। शोभा यात्रा कभी गुलादी, शोभा यात्रा कभी गुलादी। ना जंगली लाया काशी वाले दा जन्म दिहाड़ा आया, काशी वाले दा जन्म दिहाड़ा आया, काशी वाले दा जन्म दिहाड़ा आया, काशी वाले दा। खुशियां दे कोई हद ना रहंदे, संगत मुखोए हो कहंदे। खुशियां दे कोई हद ना रहंदे, संगत मुखोए हो कहंदे। जय कबीर धन कबीर, जय कबीर धन कबीर। ताज करा लाया काशी वाले का जन्म दिहाड़ा आया, काशी वाले का जन्म दिहाड़ा आया, काशी वाले का। एक दूजे नो देना बताया, सकता हूँ मामा के अंदर। एक
एक जो जिनो देन बदलना संत हो महवा के आया संत नुआ पंगरा पाया संत नुआ पंगरा पाया लाल कोल बजाया काशी वाले का जन्म तिहारा आया काशी वाले का जन्म तिहारा आया काशी वाले का जन्मदिन के केक भी आया जन्मदिन के केक भी आया कबीर साबनो भोग लवाया कबीर साबनो भोग लवाया सुदेश तुंगा वाले ने सुदेश तुंगा वाले ने साबनो वध सिखाया काशी वाले का जन्म तिहारा आया 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 काशी वाले का। जय कबीर धन कबीर जय। संत श्री अभय साहेब जी अपने मुखारबिंद से संगत को निहाल करेंगे। साहेब श्री संत अभय साहेब जी। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विनयनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार हरि सिर जय तो गुरु सिर जय तो पार गुरु सिर जय तो पार गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पंजाब राज्य के इस पवित्र भूमि पर आयोजित सत्संग समारोह में पधारे हुए साध संगतगण, सज्जनों तथा देवियों, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी एवं अन्य पूज्य संत गुरुजन, सबसे पहले बिहार की धरती से पधारे समस्त संत मंडली की ओर से पंजाब राज्य के सद्गुरु कबीर साहब के तमाम साध संगतों और भक्तों को मेरी तरफ से सादर साहेबंदगी, सादर नमन, सादर प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग सद्गुरु कबीर साहब से संदर्भित बहुत प्यारे शब्द श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर साहब अध्यात्म जगत के चमकते हुए सूर्य की तरह है। सद्गुरु कबीर साहब का
जीवन और दर्शन मानवता के पथ को आलोकित करने वाला, भ्रम और पाखंड को मिटाने वाला, मनुष्य के अंदर सजगता का विकास करने वाला जीवन और दर्शन है। सदगुरु कबीर का दर्शन इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि आज के आधुनिक दौर में जितने सारे चिंतन हो पा रहे हैं, उस चिंतनों के आधार में यदि सूत्र को तलाशा जाता है तो उसमें कहीं न कहीं सदगुरु कबीर साहब के विचार झांकते नजर आते हैं। चाहे वह राजनीतिक चिंतन हो, चाहे सामाजिक चिंतन हो, चाहे धार्मिक चिंतन हो, चाहे आध्यात्मिक चिंतन हो, जो कुछ भी आधुनिकता के नाम पर आज नए नए विचार लोगों के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन विचारों के गर्भ से कहीं न कहीं कबीर साहब का चिंतन निकलता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद बेदी ने सदगुरु कबीर साहब के संबंध में चिंतन करते हुए लिखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब हजारी प्रसाद बेदी जी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे तो उनसे कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न किया कि आपने कबीर साहब के ऊपर में बड़ा सुंदर चिंतन किया है, सदगुरु कबीर साहब को आपने साहित्य जगत में संत शिरोमणि के रूप में स्थापित किया है। आपसे एक शब्द में पूछूं कि सदगुरु कबीर साहब को आप किस रूप में समझे हैं? यदि एक शब्दों में, कुछ वाक्यों में आपसे उसकी व्याख्या पूछूं तो आप क्या बताएं? हजारी प्रसाद बेदी जी मुस्कुराते हुए कहे कि जिनके लिए प्रचलित है कि एक शब्द गुरुदेव की तामे अनंत विचार, आके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार, कि सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व से, उनके मुख से निकली हुई एक वाणी का यदि व्याख्या करते करते वेद जन, पंडित जन, मुनिजन थक जाते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में पूछते हो कि एक शब्द में उसकी व्याख्या कीजिए, उनके व्यक्तित्व को बताइए, हम कैसे बता पाए? लेकिन विद्यार्थियों ने जोर डाला, शोधार्थियों ने जोर डाला कि आप विद्वान हैं, और विद्वानों के संबंध में कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। आप तो थोड़ी व्याख्या करके कबीर साहब के व्यक्तित्व को बता ही सकते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि ठीक है, यदि मेरे मुंह से कबीर साहब के व्यक्तित्व का बखान सुनना चाहते हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव जैसा है। विद्यार्थियों को लगा कि बड़ा गजब बात है, आज तक किसी व्यक्ति के बारे में उपमा सुना हो कि चांद से उसके व्यक्तित्व की तुलना की गई है, सूरज से उसके व्यक्तित्व की तुलना की गई है, कमल के फूल से उसके व्यक्तित्व की तुलना की गई है। द्विवेदी जी इतने बड़े विद्वान, सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व को तुलना करने के लिए कोई चीज मिला तो हाथी का पांव मिला। उन्हें लगा कि कहीं कबीर साहब के व्यक्तित्व का ये अपमान तो नहीं कर रहे, मजाक तो नहीं उड़ा रहे। तो द्विवेदी जी से फिर पूछा कि कहीं आपसे बोलने में भूल तो नहीं हुई? यदि आप सुधार करना चाहें तो दोबारा सुधार कर लें। आचार्य हजारी प्रसाद बेदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं कि कबीर साहब का व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके दर्शन को मैं हाथी के पांव से तुलना कर रहा हूं। विद्यार्थियों ने कहा कि आपकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है। द्विवेदी जी ने कहा कि भाषा समझ में नहीं आ रही तो चलो थोड़ा प्रयोग करके दिखाता हूं। उसे ले गए गंगा जी के किनारे, वहां हल्की मिट्टी थी, जहां पर हल्की मिट्टी गंगा किनारे नजर आई। द्विवेदी जी ने कहा कि बगल में पता करो कि किसी के पास हाथी है क्या, तो बगल में कोई होगा व्यापारी वगैरह। तो एक हाथी उसके दरवाजे पर बंधी थी, कहा कि कुछ फीस ले अथवा ऐसे दे दे तो 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए हाथी मांग करके दे, कुछ पैसे भी ले तो दे देना।
तो जैसे भी हुआ हाथी को लाया। हाथी वहां जैसे आया, देवी जी ने कहा कि इस जो कोमल मिट्टी गंगा नदी के किनारे है, उस जगह पर हाथी के पैर उस मिट्टी पर रखवाओ। मिट्टी पर रखवाया गया। उसके बाद देवी जी ने कहा कि यहाँ पर हाथी के पैर का निशान पड़ गया, चिन्ह पड़ गया कि नहीं? हाँ। तो कहा अब धरती पर जितने पशु पक्षी का नाम जानते हो, उसमें से कोई भी पशु पक्षी, कोई भी प्राणी को पकड़ करके ले आओ और उसके पैर को इस हाथी के पद चिन्ह के अंदर रखो। पैर का जो निशान बना था, उस निशान के अंदर में इस धरती पे जितने पशु पक्षी, जितने जानवरों का नाम जानते हो, सभी पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, जिसको भी तुम ला सकते हो, लेकर के आओ और हाथी के पैर का जो निशान बना है, उस निशान के अंदर में धरती के किसी भी पशु पक्षी अथवा जानवर का पैर रख दो। उसका पैर हाथी के पैर के निशान से बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा? क्या लगता है आपको? हाथी के पैर का जो चिन्ह बनेगा जमीन के ऊपर में, और धरती के किसी भी पशु पक्षी प्राणी का, जानवर का यदि पैर रखा जाएगा, तो हाथी के पैर के निशान से, चिन्ह से उसका पैर बाहर जाएगा कि अंदर ही रहेगा? जी, बाहर नहीं जाएगा ना, अंदर ही रहेगा। देवी जी ने कहा कि धरती के जिस किसी भी पशु पक्षी का नाम जानते हो, यदि तुम ला सकते हो तो ले आओ और उसके पैर को हाथी के पद चिन्ह के अंदर रखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाथी के पद चिन्ह से, हाथी के पैर के निशान से किसी भी पशु पक्षी प्राणी का पैर बाहर नहीं जा सकता। जैसे हाथी के पद चिन्ह से धरती के किसी भी प्राणी का पैर बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह से कबीर साहब के दर्शन और विचारों का मोहर जहां लग जाए, दुनिया का कोई भी विचार उसके विचार से बाहर नहीं जा सकता। उनके विचारों का मोहर जहां पड़ जाए, कोई भी पद कोई गा दे और उसमें अंत में कहत कबीर सुनो भाई साधु लगा दे, तो साधारण से साधारण बात भी बहुत महान वजन वाला। उनके शब्द इतने सरल हैं कि उसकी सरलता खेत में, खलिहान में काम करने वाले किसान भी कहत कबीर सुनो भाई साधु का आलाप लेकर के अपने आप में मस्त हो जाए। और उनकी वाणी में इतनी गंभीरता है कि बड़े से बड़े विद्वान भी माथा खपाते खपाते थक जाते हैं, लेकिन उसके शब्दों की गहराई का अंकन नहीं कर पाते, मूल्यांकन नहीं कर पाते। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब के हम लोग शिष्य हैं। हम लोग उनकी विचारधारा का अनुसरण, अनुकरण करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए तो हम लोग जयकारा लगाते हैं कि धन्य कबीर, धन्य कबीर, धन्य कबीर। सदगुरु कबीर साहब धन्य होकर के हम लोगों को भी धन्यता के पथ पर चलने का मार्ग बताया। इसलिए हम लोग सदगुरु कबीर साहब को केवल सदगुरु कबीर साहब ही नहीं मानते, हम लोग सदगुरु कबीर साहब को कबीर भगवान मानते हैं। अब कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है कि भगवान को दूसरी परंपरा वाले मानते हैं, फिर आप कबीर साहब को सदगुरु से उठा करके भगवान क्यों कहते हैं? तो हो सकता है कि उनके नजर में भगवान की व्याख्या दूसरी होगी, लेकिन यदि हम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को भगवान कहते हैं तो उसके पीछे हमारा तर्क यह है कि भगवान शब्द की व्याख्या हम लोगों की निगाह में यह है कि जब एक आदमी त्याग करके, तपस्या करके, संयम करके, सदाचार करके अपने किस्मत को चमकाता है, भाग्य को चमकाता है, तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि हम मेहनत करते हैं, संयम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, संयम नियम के पद पर चलते हुए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का समन्वय करते हुए जब अपने भाग्य को बनाते हैं तो हम भाग्यवान कहलाते हैं। लेकिन जब कोई संत, चूंकि हम अपने भाग्य से खुद अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, जब हमारे भाग्य का किस्मत खुलता है तो हमारे भाग्य से हमको सुविधा मिलती है,
हमारे भाग्य के बदौलत हमको लाभ मिलता है, हमारे भाग्य के बदौलत हमको शांति मिलती है, हमारे भाग्य के बदौलत हमको सम्मान मिलता है। जब कोई एक व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाता है वो भाग्यवान कहलाता है। लेकिन जब कोई साधक, जब कोई संत, जब कोई गुरु त्याग करके, तपस्या करके, ध्यान करके, भजन करके अपने भाग्य को चमकाता है तो अपने भाग्य से उसको खुद को सुख नहीं चाहिए, अपने भाग्य से उसे खुद की शांति नहीं चाहिए, अपने भाग्य से उसे खुद का आनंद नहीं चाहिए। आप यदि अपना भाग्य चमकाते हैं तो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जब कोई संत अपना भाग्य चमकाते हैं तो अपने भाग्य से लाखों लोगों के भाग्य को बदल देते हैं, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। जब एक व्यक्ति अपने भाग्य को चमकावे तो भाग्यवान कहलाएंगे। भाग्य को चमका करके हजारों लोगों के भाग्य चमकाने में मदद करे, असंख्य लोगों के भाग्य को चमकाने में मदद करे तो उसको भाग्यवान से ऊंचा दर्जा दे करके उसे भगवान कहते हैं। बात समझ में आई? तो आपको हमको पता होना चाहिए कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने केवल भाग्य को चमका करके केवल अपना ही कल्याण नहीं किया, वो अपने कल्याण के साथ साथ धरती के असंख्य नर नारियों के कल्याण का रास्ता बनाते। तो यदि एक व्यक्ति भाग्य को चमकावे तो भाग्यवान, और एक व्यक्ति अपने भाग्य से लाखों लोगों के भाग्य को चमका दे तो उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सदगुरु कबीर साहब हम लोगों के भगवान हैं। कहने का अर्थ यह है मेरा, इस चीज के लिए मैं एक बार उदाहरण दिया करता हूं और एक भजन में भी हम लोग गाते हैं। सदगुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं गुरुवर तकदीर बदल जाए। सदगुरु तेरे चरणों, यदि सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए, सदगुरु के चरणों का सानिध्य और संपर्क मिल जाए तो व्यक्ति का बिगड़ा हुआ तकदीर बदल जाता है। ये केवल हम लोग मौखिक तौर पे नहीं कहते, ये सदगुरु कबीर साहब का संकल्प है। सदगुरु कबीर साहब ने दो बातें कही इस संदर्भ में। पहली बात तो साखी के माध्यम से उन्होंने कहा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहा ही कबीरता दास को तीन लोग करना है। साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माथे पर गुरु के आशीर्वाद को, गुरु के छाया को लेकर के चलते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि पंजाब की बात कौन कहे, यूपी की बात कौन कहे, बिहार झारखंड की बात कौन कहे, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बात कौन कहे, भारत की बात कौन कहे, धरती ही नहीं तीनों लोगों में किसी भी जगह चले जाएंगे वो, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके माथे पर गुरु की छाया होगी, जिसके माथे पर गुरु का आशीर्वाद होगा, धरती के किसी कोने की तो बात छोड़ो, बल्कि ब्रह्मांड के किसी कोने में, इस सृष्टि के किसी कोने में चला जाएगा तो भी उसका बाल बांका नहीं होगा। ये संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का संकल्प है। ये सदगुरु साहब। दूसरी बात सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिसके माथे पर गुरु सवार होते हैं, गुरु की छत्र छाया होती है, उसका तो कुछ नहीं ही बिगड़ता है, वो बचता है, वो फंसता नहीं। कैसे? इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं प्रकाशित करना चाहता हूं। एक जंगल में एक गाय चरने के लिए, हालांकि वो 10-12 की संख्या में गाय चरने गई थी। गाय का चरना समझते हैं? जंगल में जो गाय चराने के लिए लोग ले जाते हैं मवेशी को, तो चारा के लिए, तो गाय 1 दर्जन गाय लगभग चराने के लिए चरवाहा लेकर के गए। तो दर्जनों गाय में से एक गाय को प्यास लग गई, तो अब उसके मुंह में आवाज तो है नहीं कि किसी से मांगेगी कि हमको पानी चाहिए। प्यास लगी तो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी कि कहीं पानी मिल जाए। तो पानी की तलाश में भटकते भटकते गाय अपने झुंड से बाहर चली।
और खोजते 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 अपने झुंड से इतना ज्यादा दूर चली गई कि फिर लौट पाना बड़ा मुश्किल हो गया। संजोग की बात, खोजते खोजते उसे एक तालाब मिल गया, जिस तालाब में पानी पूरे तो नहीं भरे हुए थे, कीचड़ था, कीचड़ के बीच में थोड़ा सा पानी था। तो स्वाभाविक है कि प्यास जब आदमी को लगती है तो जीवन जाए बचे बाद में देखा जाएगा, पहले तो पानी खोजेगा ना, पानी चाहिए ना। तो कीचड़ से भरे हुए तालाब, अब बीच में थोड़े से जल का स्रोत। गाय को इतनी जोर से प्यास लगी हुई थी कि गाय दौड़े दौड़े न आगे देखी न पीछे देखी, न कीचड़ देखी न दलदल, और कूद गई उसमें, पानी के पास पहुंच गई। तो पानी पी करके तृप्त तो हो गई, लेकिन तब तक में वो कीचड़ जो था दलदल के तरह था, उसमें वो फंस गई। संजोग की बात कि अब वो कीचड़ में फंस गई, दलदल में फंस गई, तो अब प्यास तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरे तरफ से प्राण संकट में आ गई कि गाय निकल करके आएगी कैसे। क्योंकि दलदल का नियम है, जब उसमें व्यक्ति फंसता है तो जितना वो हिल डोल करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, उतना और वो फंसता चला जाएगा। तो गैया 2 बार 4 बार छटपट की, गाय फंसते चली गई, तो गाय एकदम थक करके शांत हो गई। संजोग की बात, टहलते टहलते उस जंगल का राजा जो शेर था, बाघ, वो टहलते टहलते उसी झील के किनारे से, पोखर के किनारे से निकला, तो देखा कि एक गाय फंसी हुई। उस शेर को भी लगा कि हम महीने भर से लगभग भोजन हमको मिला नहीं था, हम भी भूख से तड़प रहे थे, आज मेरे सामने में अचानक ये गाय आ गई है, वो आज तो छक करके खाना है। ऐसा सोच करके भूख के आवेश में उस बाघ को भी सोचा नहीं गया कि आगे में क्या है नहीं है। देखा कि गाय फंसी हुई है, एकदम जाना है और उसको खाना है, यह सोच करके बाघ इतने जोर से छलांग मारा कि किनारे के बाद छोड़े सीधे बीच पोखर में जाकर गिरा। तो गिरा तो जरूर, लेकिन गाय से लगभग 20-25 कदम की दूरी पर वो भी उस दलदल में गिर करके फंस गया। फंस जाने के बाद अब यहाँ बाघ फंसे हुए हैं, 20 कदम की दूरी पर गाय फंसी हुई है। कुछ देर के बाद दोनों साथ बाघ भी छटपट करता है, तो थोड़ी देर के बाद में बाघ और धंसते चला जाता है, थक करके बाघ भी शांत होकर के बैठ गया। दोनों बैठे हुए, फिर अचानक दोनों में बातचीत हुई। हालांकि जैसा मनुष्य की भाषा में बातचीत होगी वैसी नहीं होगी, संकेत में बात हो रही है, भावात्मक संदेश है। वह संदेश क्या है कि गाय और बाघ आपस में चर्चा कर रहे हैं। गाय पूछती है कि तुम यहाँ क्यों फंसा, बाघ पूछती कि हमसे पहले तो तुम बताओ कि तुम क्यों फंसी हो। गाय कि हम तो चारा चरने आए थे, लेकिन प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते यहाँ आए और पोखर में दलदल में फंस गए, मजबूरन जानबूझ के तो हम फंसे नहीं। लेकिन तुम क्यों फंसे भाई, तू तो जंगल का राजा है, क्यों फंस गया। उस बाघ ने कहा कि हम तुम्हें खाने के चक्कर में फंस गए, तुम पानी पीने के चक्कर में फंसे और हम तुम्हें खाने के चक्कर में फंस गए। तो गैया बोली कि अब तो तुम वहां फंसा है तो खाएगा कैसे। तो बाघ का यही तो मजबूरी है। बोला अब ठीक है, एक तो मजबूरी है कि तुम मुझे खा नहीं सकता, जरा ये बताओ कि यहाँ से निकल करके जाओगे कैसे। तो बाघ ने चिढ़ाते हुए गाय से पूछा कि हमको पूछ रही हो जाओगे कैसे, तुम बताओ कि तुम कैसे जाओगे। गाय ने कहा चिंता मत करो, जैसे ही दिन ढलेगी गाय का जो मालिक है वो गाय के पास पूछते पूछते आएगा, गाय की गिनती करेगा, गिनती करने के बाद उसमें एक यदि घटा हुआ उसको लगेगा कि एक गाय मेरी इस झुंड में नहीं है, समूह में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि रात क्यों ना हो जाए, लालटेन जला करके बत्ती जला करके वो मुझे खोजने आएगा, क्योंकि वो मेरा मालिक है, उसके नियंत्रण उसके अधीन में रहता हूँ, तो मुझे खोजते खोजते आएंगे और मुझको भरोसा है कि खोज करके यहाँ से निकाल करके मुझे लेकर के जाए। उस बाघ से पूछा कि मुझको तो यहाँ से निकाल करके लेके चले जाएंगे,
लेकिन तुम बताओ कि तुमको भी कोई निकालने के लिए आएगा क्या? तुम्हारा कोई मालिक वगैरह है? बाघ ने कहा पागल कहेगा, हमारा कौन मालिक होगा? हम हैं जंगल के राजा, मैं शेर हूं, मैं जंगल के सभी प्राणियों का मालिक हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? गाय ने कहा ठीक है, वो शाम के वक्त में पता चलेगा कि तुम्हारा मालिक कौन हो सकता है। संध्या ढली, ढलने के बाद वो गाय का मालिक खोजते खोजते आया तो देखा कि गाय फंसी हुई है। उस फंसे हुए गाय को निकालने के लिए मालिक किसी तरह से रस्सी वगैरह की व्यवस्था की, 2-4 आदमी को बुला करके लाया और गाय को किसी भी तरह से उस रस्सी के सहारे बांध करके खींचते खींचते परेशान होते होते आखिर में निकाल ही लिया। गाय किनारे पर आ गई। बाघ को कौन बचाएगा? बाघ को कौन निकालेगा? वो बेचारा यदि दया करके बाघ को निकालने का प्रयास भी करे तो बाघ को निकालने जाएगा, उसी को खा जाएगा। तो क्यों निकालेगा? कोई डर से निकालना, बेचारा मन में भावना भी होगी कि निकाल देते हैं, तो फिर भी उसके डर से कैसे निकाल पाएगा? तो गाय जब किनारे पर आ गई तो उस बाघ से एक संदेश दिया, जिस संदेश को आपको और हमको सुनना है और समझना भी है। उस गाय ने उस बाघ को संदेश दिया कि देखो भाई, एक ही दलदल में तुम भी फंसे थे और उसी दलदल में हम भी फंसे थे, लेकिन हमारे ऊपर एक रखवाला था, हमारे ऊपर एक मालिक था। तो मेरे फंसने के बावजूद भी वो खोजते खोजते आया और मुझे निकाल करके यहाँ से ले जा रहा है। लेकिन तुम कहते हो कि मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई रखवाला नहीं है, तो तुम फंसे तो फंसे ही रह गए। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे एक गाय का मालिक गाय को पोखर से निकाल करके, गाय को पोखर से बचा करके ले जाता है, लेकिन बाघ का कोई मालिक, कोई रखवाला न होने के कारण वह बाघ दलदल में फंसता है, वही मर जाता है। उसी तरह से हे भक्तों, हम जिस गुरु के अधीनता को स्वीकार करते हैं, यदि हमारे माथे पर गुरु का हाथ होता है, यदि हमारे ऊपर गुरु का मालिक बना होता है, यदि गुरु हमारे मालिक होते हैं, तो हम भवसागर के दलदल में फंसते हैं तो गुरु हाथ पकड़ के हमें निकाल के लेके जाते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, जिसके जीवन का कोई मालिक नहीं होता, जिसके जीवन का कोई रखवाला नहीं होता, वो उस बाघ की तरह होता है। ये अपने आप में वो शहंशाह बनता है कि मेरा कोई रखवाला क्यों बने, मेरा कोई आधार क्यों बने, मेरा कोई मालिक क्यों बने। हम अपने जीवन का मालिक खुद ही हैं, हम अपने जीवन का रखवाला खुद ही हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे वह बाघ अपने अहंकार में भूल रहा था कि हम जंगल के राजा, हमारा भला कौन राजा हो सकता है, तो दलदल में फंसा तो फंसा ही रह गया। लेकिन गाय स्वीकार करती है कि मेरा कोई मालिक है, तो फंसने के बाद भी उसे किसी के बचाने की उम्मीद है, कोई बचा देता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में सदगुरु होते हैं, हमारे जीवन का बागडोर सदगुरु के हाथ में होता है। यदि हम